लेट्स फाइट बयानबाजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध टल गया। ट्रंप ने कहा कि हमने कई युद्ध रोके और ये कोई मामूली लड़ाइयां नहीं थीं। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद गंभीर हो चुके थे, विमान गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि करीब 5 लड़ाकू विमान तबाह हो चुके थे। ट्रंप का दावा है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात एक परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका के दखल ने इस टकराव को रोक दिया। ट्रंप ने इस तनावपूर्ण स्थिति की तुलना अमेरिका और ईरान के बीच टकराव से की और कहा कि जैसे हमने ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म किया, वैसे ही भारत पाकिस्तान टकराव को भी संभाला। India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक बार फिर चेतावनी दी कि अमेरिकी डॉलर की हैसियत कोई नहीं छीन सकता। ट्रंप ने जीनियस एक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे अमेरिकी डॉलर और ज्यादा मजबूत हो गया है। उन्होंने कहा, ब्रिक्स नाम का एक छोटा सा ग्रुप है जो अब तेजी से खत्म हो रहा है। ये लोग अमेरिकी डॉलर की जगह लेने का सपना देख रहे थे। ट्रंप ने धमकी भी दी और कहा कि मैंने कहा ब्रिक्स के किसी भी देश पर 10% टैरिफ लगेगा। अगले ही दिन उनकी बैठक थी, लगभग कोई पहुंचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने डॉलर का वर्ल्ड रिजर्व स्टेटस खो दिया तो ये किसी वर्ल्ड वॉर को हारने जैसा होगा। Genius Act provides banks, businesses, and financial institutions a framework for issuing crypto assets backed one for one with real U.S. dollars, treasury bills, and other cash equivalents. It's really strengthening the dollar and giving the dollar great prominence. And, you know, you have this little group called BRICS. It's fading out fast. But BRICS is, they wanted to try and take over the dollar, the dominance of the dollar and the standard of the dollar. And I said, anybody that's in the BRICS consortium of nations, we're going to tariff you 10%. And they had a meeting the following day, and almost nobody showed up. They said, leave me alone. They didn't want to be tariffed there. So it's amazing. No, we're not going to let the dollar slide. If we have a smart president, you're never going to let the dollar slide. If you have a dummy, that could happen. Like the last one, he would, if you ever asked him about the dollar sliding, he would have no idea. But we can't let that ever happen again. Consumers, vendors, and people all over the world will then be able to use those stable coins for ultra low-cost transactions that are cleared and settled in a matter of seconds rather than weeks and months. And it's really an amazing thing. And with the privacy, flexibility, and decentralization of cash, this revolution has the potential to supercharge American economic growth and empower billions of people to save and transfer in U.S. dollars. It's really all backed by the dollars. It's really a great thing. And a lot of, you know, we had a lot of Democrat support. I have to tell you that. I was shocked anytime you get one but we had a tremendous amount of Democrat support, which we appreciate, and which just shows you that you're doing the right thing. This will increase demand for U.S. Treasuries, lower interest rates, and secure the dollar's status as the world's reserve currency for generations to come. The reserve currency is so important. You know, if we lost that, that would be like losing a world war. We can never let anyone play games with us, and that's why when I heard about this group from BRICS, 6 countries basically, I hit them very, very hard. And if they ever really form in a meaningful way, it will end very quickly, I will tell you, for them. They won't be gone very long. I don't think they'll even do it. They're virtually afraid to meet.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक कार्यक्रम के दौरान एलपीजी और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ने एलपीजी और गैस नेटवर्क में क्रांति ला दी है। 2014 में केवल 14 करोड़ परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन था, लेकिन अब ये आंकड़ा 33 करोड़ तक पहुंच गया है। 2014 में सिलेंडर गैस जो रिफाइनरी से बनती है उसके देश भर में केवल 14 करोड़ कनेक्शन थे। आज चलते चलते छलांग मार के वो 14 करोड़ सिलेंडर जो है 33 करोड़ से अधिक सिलेंडर आ गया है। अगर आप मान के चलिए हमारे परिवार में एक कनेक्शन हो तो मैं समझता हूं जो हमारी पूरी जनसंख्या है 140 करोड़ की, वो आपने ऑलमोस्ट पूरी कर दी है। और आपने 2016 में ऊर्जा के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बहनें हैं, हमारे परिवार हैं, उनको आज उन लाभार्थियों को 500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है। और उज्ज्वला योजना में आज 10 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। और मुझे बहुत खुशी है माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने रख के कि वेस्ट बंगाल में आपने 1 करोड़ 25 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन दिया है। सिलेंडर गैस हमारे यहाँ 500 रुपए की बिकती है लाभार्थियों के लिए। श्रीलंका में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1200 रुपए का है, नेपाल में 1201 रुपए का है और पाकिस्तान में 1000 रुपए से अधिक का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में ताजिए की ऊंचाई और उससे जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवादित बयान दिया है। योगी ने कहा कि हाल ही में जौनपुर में एक बड़ा ताजिया उठाया गया था जो हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत का कारण बना। उन्होंने कहा कि घटना के बाद रास्ता जाम किया गया था। पुलिस ने जब कार्रवाई को लेकर निर्देश मांगा तो उन्होंने सख्त लहजे में कहा, लाठी मारकर बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। एआईएम-आईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमें इस हमले का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रहना चाहिए जब तक चारों आतंकवादी मारे नहीं जाते। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है। अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमसे सवाल करते रहेंगे।
और कोई वहां पर अनाप शनाप बयान देता है कि अज़ां को बदल दो, फुला को बदल दो। अरे मोदी जी, भारत को आप क्या करना चाहते हैं बताओ आप। मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है। अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो? चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, आवाम के लिए एक एयर स्ट्रिप बना रहा है। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा? ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे कि बिहार में नेपाली हैं, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए? तुम सो रहे थे? तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए? बताओ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के दौरान कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ाएं, तो लगता है उनके दिल में कहीं स्पेन जरूर रहा होगा। डॉक्टर यादव ने ये बात स्पेन की समृद्ध संस्कृति, कला, स्थापत्य और आधुनिक विकास मॉडल को देखते हुए कही। इस शहर को ऐसा लगता देख करके कि जैसे सपनों का शहर हो। हमारे यहाँ तो माँ सरस्वती की हमारी सबके अवधारणा है कि माँ सरस्वती के माध्यम से कल्पनाशीलता के बाहर जा करके भी उसकी सुंदरता ग्रहण होती है। ऐसा लग रहा है कि सरस्वती माँ ने सीधे बार्सिलोना का आशीर्वाद दे दिया है। वो दृश्य ऊपर से भी दिखाई देता जब मैं यहाँ उतरने वाला था और यहाँ आकर के देखकर भी लगता है जिस प्रकार से शहर की रचना बनी हुई है, जिस प्रकार से बाकी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ के लोग अपने अतीत से भी गौरवशाली संबंध रखना चाहते हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को याद करूँगा जब उनने भारत के संदर्भ में ये बात कही है कि विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ाएं, तो मुझे लगता है स्पेन उनके दिल में जरूर होगा। इस नाते से उन्होंने ये शुरुआत की होगी। इस माध्यम से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आपके इस गौरवशाली अतीत को नमस्ते करता हूं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई गंभीर प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और कहा कि हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एक बेहद गंभीर आपदा का सामना किया है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। इस आपदा का असर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों की आजीविका भी पूरी तरह प्रभावित हुई है। कई परिवार बेघर हो गए हैं और हजारों लोग असहनीय तकलीफ झेलने को मजबूर हैं। प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन चुनौती बड़ी है और रास्ता कठिन। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and
Let's smile.